Yes, dear students, welcome to all of you once again in session 4. सेशन 4 हमने क्यों कहा? बिकॉज ये हमारा जो न्यूमेरिकल का ये सेशन 4 है एंड दिस इज पार्ट 4. वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स अगेन. ओके, एंड विद फार्मूले. जो आपको इस एंड के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले मिलेंगे जो हमने डिराइव किए हैं. ये जो क्वेश्चंस किए हैं इनसे फार्मूले को डिराइव किया है. You will see here the questions here in the diagram. You can see this is circle, and here a circle means a wire has been joined in the form of circle, and here also a wire of resistance R is joined in the form of circle, and here a wire of resistance R and length L is divided into 5 equal parts. Okay, so ऐसे ही हमने इसमें क्वेश्चंस किए हैं. अगर 4 इक्वल पार्ट्स होंगे, n इक्वल पार्ट्स होंगे, तो रेजिस्टेंस कितना होगा. उस इन जो हमने डिराइव किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनके बेस पर हमने फार्मूले भी निकाले हैं जो एट द एंड ऑफ सेशन आप नोट कर सकते हैं. और इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि इन क्वेश्चन से खुद क्वेश्चन बनाइए और ट्राई करिए इनको. उससे आप और ग्रो करेंगे, आपकी नॉलेज ग्रो होगी. ठीक है, एंड कंटिन्यू टू शेयर दिस नॉलेज विद अदर्स आल्सो, विद मी आल्सो. व्हेन यू मेक सम न्यू क्वेश्चंस, do share with me also in the chat box. Okay, now let's start the session and move towards whiteboard. God bless you all. Now let me start the session. Okay, and in last session, if we try to recall, we discussed some numericals on series combination and parallel combination of resistors. And I am 100% sure that all of you must have enjoyed these 3 last sessions, okay, of numericals. And dear students, these numericals are very important, and these are good numericals for board exam and for knowledge also. And today in the continuation, इसी के continuation में आज हम एक और सेशन ले रहे हैं. इसमें भी हम numericals ही डिस्कस करेंगे, लेकिन these are very simple numericals and good for competitive exams also, क्योंकि अक्सर छोटे एग्जाम्पल्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं. ठीक है ना, बस थोड़ा सा हमें अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करानी पड़ती है. एंड यू नो, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ. ओके, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज किसी भी रिस्पेक्ट में हो, ब्रेन की हो, फिजिकल हो, या एक्सरसाइज करें हम कुछ सेविंग करने की, जैसे सेव करने की बात करें तो सेव वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज को हम सेव करने की एक्सरसाइज करें, so that is also good for us, for the nation also. So now let's start the session, and I am going to write first question of the day on the board. And again I repeat my sentence. जब हम क्वेश्चन को लिख लें तो don't wait कि हम पूरा आंसर कराएंगे. ठीक है, you should start doing on your own. So that will be better way of solving the questions. Okay, and I am sure you will enjoy more. So the question is, a nichrome wire of resistance R is cut into 4 equal pieces. Okay, and what happens? Find क्या करना है? The resistance of each part in terms of original resistance of the wire. हमने इसमें शॉर्ट में लिख दिया. And the second find करना है the resistance when these 4 pieces are joined in parallel. हमारे 2 पार्ट हमें करने हैं ना, तो एक वायर दिया है, which wire? Nichrome wire. तो एक नाइक्रोम वायर दिया है हमको. दिस इज अ नाइक्रोम वायर एंड इट्स लेंथ इज AB. ये L है ना, लेंथ L है, और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है? रेजिस्टेंस इज R. यहां से लेकर यहां तक जो हमारा लेंथ है, इसका रेजिस्टेंस है R. इट इज कट इनटू 4 पीसेस. ये हम लिखेंगे गिवन में. सो आई हैव रिटन हियर गिवन. इन प्रीवियस सेशंस आई हैव रिटन गिवन टू फाइंड, है ना, एंड आई एम श्योर दैट all of you must be writing here given and find also. Again remember my words, and you will find in coming board exam that given and to find, it helps in board exam and it helps in school exam also. I am sure if you discuss with your teacher, they will say yes, it is good to write given and to find. Okay, तो 4 pieces में इसको कट कर दिया गया, 4 equal pieces. तो हमने इसके 4 equal pieces किए. देखिए, तो ये हमारा सेंटर हो गया 2 pieces, ये हमारा और ये हमारे टोटल 4 पीसेस हो गए. तो 1 2 3 4 पीसेस हो गए, है ना. तो जब इसकी लेंथ L है, रेजिस्टेंस पूरे का R है, तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस? कितना होगा हर पीस का रेजिस्टेंस? व्हाट डू यू थिंक? इट शुड बी L/4 और R/4.
यस, लेंथ इज L by 4 बट रेजिस्टेंस ऑफ ईच क्या होगा, R by 4 होगा, क्योंकि पूरे का रेजिस्टेंस R है हमको, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट वायर इज हियर R. So we have to find out the resistance of each part, है ना, हर पार्ट का हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है. So it is divided into 4 equal parts. So resistance of each part will be R by 4, R by 4, and here R by 4, and here it is also R by 4. तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, R by 4 होगा. Okay, and we know that रिलेशनशिप हमने किया है कि R is directly proportional to L. किया है ना हमने, है ना? Yes, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो जब लेंथ इस पे कम होगा तो रेजिस्टेंस तो क्या होगा, कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस ये हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस L. तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में फर्स्ट पार्ट, सिंस वी नो, दिस इज नो. ओके, इसको लिखेंगे सिंस वी नो दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. तो रेजिस्टेंस बढ़ता है लेंथ के साथ, इट डिक्रीजेस विद लेंथ. सो लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, तो ईच पार्ट विल हैव R by 4 रेजिस्टेंस. तो देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कितना होगा, दिस इज R by 4, R by 4. तो ये R देखिए यही था रेजिस्टेंस. तो इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस हमारा आंसर आ गया, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू R by 4. एनी प्रॉब्लम है? नो. सो नोट डाउन. इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की. देखिए प्रेजेंटेशन शुड बी गुड, इसी तरीके से आप नोटबुक में करेंगे. ओके, नाउ सेकंड पार्ट. And this question जो है had been asked in board exam also in past. So इस तरह का क्वेश्चन जो है 2014 बोर्ड में पूछा गया. तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, good, this is good for competitive exam also, right? So now second part, the resistance when 4 pieces are joined in parallel, the resistance be equivalent resistance हमको find करना है, ठीक है ना? और how many pieces are there? 1 2 3 4. तो हम इनको निकालेंगे parallel combination में. तो इसमें लिखेंगे सिंस these pieces are in parallel combination. तो therefore equivalent resistance हमारा कितना हो जाएगा, RP निकालना है ना. So 4 pieces है तो हमें 4 टाइम लेना पड़ेगा. So this will be equal to R1 plus R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4. ये हमारा क्या हो गया, this is R1, this is R2, this is R3 and this is R4. इनकी वैल्यू कितनी होगी देखिए, 1 upon R by 4. यहां ये ध्यान रखना है, it is R by 4. Here sometime we make silly mistakes. I am not saying you make silly mistake. We, हम लोगों से जल्दी ये छोटी सी गलती हो जाती है. Okay, so never say, I don't say you make mistake. We sometimes. R by 4 plus here R by 4 plus 1 upon R by 4 plus 1 upon R by 4. Yes, any problem here? Now next step क्या होगा, ये 4 कहाँ जाएगा, मैथमेटिक्स का यूज करेंगे. तो इंटीग्रेटेड है सारा सब्जेक्ट. इंग्लिश में हम लिख रहे हैं, बीच में से हिंदी बात कर रहे हैं, 2 लैंग्वेज हो गई. थर्ड हम फिजिक्स कर रहे हैं, फोर्थ हम मैथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं, एंड फिफ्थ हम ड्राइंग की बात करते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. तो इंटीग्रेटेड अप्रोच हमारी इंटीग्रेटेड होना चाहिए, है ना, सबको साथ लेके आगे बढ़ना है. ओके, सो नाउ देयरफॉर 1 upon RP, इसके बाद में आते हैं तो 4 कहाँ जाएगा, ये it will be numerator here. 4 upon R plus 4 upon R plus 4 upon R plus 4 upon R, and here 1 upon RP will be equal to कितना हो जाएगा देखिए, 1 2 3 4 है ना. What will be the answer? Just hurry up, find out.
कितना आ जाएगा 4 4 4, तो इट विल बी 16 अपॉन r. ओके, सो इज इट द कंप्लीट आंसर? क्या आंसर यहां पूरा हो गया है? नो. अगेन हियर वी हैव टू रिमेंबर, कई बार हम एग्जाम में जल्दी में आंसर यहीं छोड़ देते हैं, है ना? तो इट इज नॉट द कंप्लीट आंसर बिकॉज वी हैव टू गेट rp एंड हियर वी आर गेटिंग 1 अपॉन rp. तो देयरफॉर ये आ जाएगा आपका r अपॉन 16. तो हियर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकंड पार्ट का जो आंसर आ गया, दिस इज r p इक्वल टू r अपॉन 16 एंड फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारा ये. तो दिस वे यू हैव टू डू इन एग्जाम आल्सो. इसको बॉक्स में कर दीजिएगा, है ना? आपको मार्क्स जल्दी मिलेंगे. ठीक है, एनी प्रॉब्लम है? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए कितना हो गया r by 16. जो टोटल रेजिस्टेंस था उसका कितना 1 by 16 टाइम्स आ गया. ठीक है ना? तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया. हमारा रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया. ये हम कर चुके हैं कि when we have to reduce the resistance of the circuits, then we join the appliances in parallel, and when we have to increase the resistance, we join the appliances in series. ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको नोट्स बनाते रहिए, एक एक लाइन में स्टार मार करके लिखते रहिए. ओके, सो नोट डाउन, हरी अप. ओके, डन. तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको बस करते रहना. डिटर्मिनेशन होना चाहिए, है ना? डिटर्मिनेशन होना चाहिए. हमेशा पॉजिटिव चैलेंज लेके आगे बढ़िए. रिमेंबर पॉजिटिव चैलेंज. एक छोटी सी 2 लाइनें हम सुनाते हैं, हमने कई भजन में सुनी कि फलक, फलक कहते हैं आसमां को, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी ठान ली है वही आशियां बनाने की. चुनौतियां हमारे सामने आएंगी तो हमें घबराना नहीं है, जो हमारा लक्ष्य है उसको हमें लेकर रहना है. ठीक है, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमने भी ठान ली है वही आशियां बसाने की. तो चैलेंजेस आएंगे, ओवरकम करना है हमको. हैविंग फेथ इन गॉड, पॉजिटिव चैलेंज. डन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. So now this is the second question and this question has also been asked in previous years. इसको भी कई बार पूछा गया है. And again you can see this is a good question for NTSC like exams also, no? Olympiad also. So here a wire of resistance 10 ohm. वो resistance कितना wire का दे रखा है? 10 ohm दे रखा है ना? So resistance is 10 ohm and it is bent in the form of a circle. Find effective resistance at the ends of any diameter, and it is formed in the form of circle. So wire हमारी ये है, this is the wire of length L and it is converted into form of a circle. तो हमने इसको सर्कुलर बना दिया. देखिए ये हमारा हो गया, यस. ओके, इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. एनी प्रॉब्लम हियर? एंड नाउ इसका डायमीटर ये भी हो सकता है, इसका डायमीटर ये भी हो सकता है. ओके, और कहीं भी डायमीटर बना सकते हैं. तो जो डायमीटर होगा उसके अक्रॉस हमें कितना रेजिस्टेंस होगा. अगर हम डायमीटर ये मान लें, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड यहां पर ये देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? ये जो पार्ट है हमारा, दिस पार्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट. ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमको? 10 ओम दे रखा है. तो इसी तरह से क्वेश्चन अब हमने इससे पहले किया था कि टोटल रेजिस्टेंस R था एंड इट वाज कट इनटू हाउ मेनी इक्वल पीसेस? यस, 4 इक्वल पीसेस, है ना? वो किया था ना. तो इसमें देखिए जब डायमीटर के अलोंग हमें फाइंड करना है तो ये दोनों पीसेस कैसे होंगे? ये जो R और ये R कैसे होंगी? दोनों इक्वल होंगी. टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 10. तो जब दोनों ये R इक्वल है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ईच पार्ट का? तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विल बी हाउ मच? वेरी गुड, 5 ओम. दिस इज आल्सो 5 ओम. अब देखिए करंट यहां से आ रहा है ना, यहां से एंटर कर रहा है. तो यहां से करंट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, है ना? तो दिस मींस ये दोनों कैसे कनेक्टेड है?
पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है, रिमेंबर दिस। तो करंट यहां से एंटर कर रहा है ना, ये इसको ज्वाइन करेंगे, एक टर्मिनल एंड दिस इज दूसरा टर्मिनल। तो करंट क्या है, देखो यहां पर दो डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, तो ये पैरेलल में है। तो वी शैल फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो स्टार्ट डूइंग इट। सो ये इन फॉर्म, इट इज इन फॉर्म ऑफ सर्किल। तो इसको हम सर्किल फॉर्म में कैसे बनाएंगे, देखिए इसी को कैसे दिखाएंगे। दिस इज हियर, ऐसे जा रहा है, देखिए ये एक रेजिस्टेंस हो गया और ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, यस, एंड दिस इज एंड ए एंड दिस इज एंड बी। और ये कितना होगा, पूरा 10 था, तो जैसे ये 5 है तो कितना होगा 5 ओम। Similarly, this is 5 ohm. Okay, now you can see current is divided into how many parts? 2 parts. यहाँ से तो parallel combination हो गया। Okay, now do it. Solution. Here, the resistance of each part, okay, on the both side of diameter will be how much? कितना होगा पूरे का हाफ। It will be 5 upon 10 upon 2 means 5 ohm. So 5 ohm, 5 ohm. So now, so these are in, now 5, 2. Here we can write down. So 5 ohm and 5 ohm are in parallel. So 5 ohm and 5 ohm are in parallel. Okay, एक हमारा R1 है और दूसरा क्या है R2 है। तो इसको हम मान लेंगे दिस इज R1, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एंड दिस इज R2। तो therefore 1 upon सिंपल 2 है ना, तो सिंपल फार्मूला लगाते हैं। Equivalent resistance Rp will be equal to R1 into R2 upon R1 plus R2. So कितना आ गया आंसर? Yes, some of you have done good. So it will be 5 into 5 upon 5 plus 5, 25 upon 10, and effective resistance हमारा आ गया 2.5 ohm. Okay? तो यहां लिख देंगे therefore effective resistance is 2.5 ohm। तो इस तरह से पूरा आंसर छोड़ेंगे, डोंट लीव आंसर हियर। ओके, सो दिस इज अ मेथड टू डू इट। कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अगर यहां पे R दे दें, R अगर हम यहां दे दें कि दिस इज रेजिस्टेंस R, तब इस केस में आंसर कितना होगा? जब सोचिए जरा, 10 था तो कितना हो गया 1/4 आ गया इसका ना, तो R होगा तो आंसर कितना आना चाहिए? R/2 आंसर आना चाहिए, R/2। करके देखिए आप इसको, हरियर। यस, किया आपने क्वेश्चन। हमने बोला कि अगर 10 की जगह R ले लें हम, if the resistance a wire of resistance R ohm is bent in form of circle, तब कितना आंसर आएगा? तब आंसर कितना आएगा? हमने बोला था आंसर आएगा R/4। तो देखिए 10 की जगह R/4 लेंगे, तो 10 की जगह R/4 आंसर आएगा। तो 10 है तो R, सो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा? R/2। R/2 और R/2 को लेकर चलेंगे तो R/2 into R/2 अपॉन R/2 प्लस R/2, एंड आंसर आपका आएगा R/4। तो इन दिस केस आंसर विल बी R/4। सो ये देखिए फार्मूला बन गया है ना, दिस बिकम्स द फार्मूला, एंड यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आपका क्वेश्चन आता है ऐसे मल्टीपल चॉइस का, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। So when a wire of resistance R is bent in the form of a circle, then the effective resistance across each end will be R/4. So note down this. This is important formula to solve the question quickly in the
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इस तरह से अपने आप में खूब फार्मूले बनाते रहिए, ठीक है। इससे इसी तरह से हमने क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला, उसमें R/4 था रेजिस्टेंस ईच पार्ट का। इस तरह से उसका भी फार्मूला बनाइए और इनको शेयर करिए चैट बॉक्स में, शेयर करिए। नॉलेज शुड बी गेन्ड एंड इट शुड बी शेयर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप कहोगे सर इतने सिंपल क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में आते हैं? यस डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सिंपल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम जैसे सिंपल ये बोर्ड है, ठीक है ना, सिंपल बोर्ड है, नीट एंड क्लीन, वॉट एवर यू वांट टू राइट ऑन इट यू कैन, है ना। ऐसी बोर्ड एग्जाम है, बहुत सिंपल एग्जाम होता है, ठीक। उस पर आप अपनी नॉलेज को लिखते हैं और आप मार्क्स लेते हैं। सो इफ समबडी सेज कि बोर्ड एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम होता है, बहुत तैयारी करो, सो घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पढ़ते जाइए, अपना काम करते रहिए। तो देखिए, ए नाइक्रोम वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 3 इक्वल पीसेस। तो रेजिस्टेंस R है, हाउ मेनी पीसेस आर 3। फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें कितने पीसेस थे? 4 पीसेस थे, है ना। बुक में दिया था कि एक वायर, तो हमने इसमें नाइक्रोम वायर ऐड कर दिया। इसलिए ऐड कर दिया कि चलो एक क्वेश्चन से जितनी सी ज्यादा नॉलेज हो सकती है उतनी हम ले लें। तो नाइक्रोम क्या है? इट इज एन एलॉय, इट इज अ मेटल और इट इज ए नॉन मेटल। तो नाइक्रोम इज एन एलॉय, है ना। नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, निकल, क्रोमियम और किसका है? यस, एनीवन एल्स? कोई भी जरा आंसर दे दीजिए जल्दी से। यस, हरी अप। Yes, who is giving answer? Okay, Parna Vashist is giving answer. Sir, nickel is an alloy of nickel, chromium, okay, iron, and manganese, and its resistivity is low or high? It has very high resistivity, है ना। इसलिए इसको यूज करते हैं एज एन एलिमेंट हीटिंग डिवाइसेस में, आपके गीजर में, हीटिंग डिवाइसेस में, ओके। और ये जो आपको आजकल हीटर की जरूरत पड़ती है विंटर में, सो इनमें नाइक्रोम वायर यूज होता है। सो क्या फाइंड करना है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है जब इनके 3 पीसेस को हमने ज्वाइन कर दिया, एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट फाइंड करनी है ना। तो गिवन एंड टू फाइंड आप लिख लेंगे। तो हम देखिए ये वायर है, ओके, दिस इज वायर ए बी। पहले जैसे क्वेश्चन है 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3, दिस इज R1, R2 एंड दिस इज R3। सो पूरे का रेजिस्टेंस कितना था? दिस इज R। तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? R/3, R/3 एंड R/3। नाउ वी हैव टू फाइंड कि तीनों को पीसेस को हमने पैरेलल में ज्वाइन कर दिया इस तरह से, ओके। ये हमारे पैरेलल में ज्वाइन हो गए, दिस इज R1, ये और ये, ठीक है। So these are joined in parallel, R1, R2, R3. So effective resistance हमें फाइंड करना है। तो now this is converted into this form, okay। तो सॉल्व करिए and try to relate with first question, और एक नया फार्मूला बन जाएगा आपका। You will get a new formula for competitive exams, okay। शुरू करें, okay। तो लिखिए, इसमें गिवन लिख लेंगे टू फाइंड। सो ऑन कटिंग इनटू 3 इक्वल पीसेस, इक्वल वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट, इक्वल पार्ट्स, ओके। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ each part will be how much? Total का 3, R/3। तो therefore R1, R2, R3 हमेशा कितना होंगे? therefore यहाँ लिखेंगे R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R/3, okay। now we have to find out the effective resistance because these are in parallel, so therefore 1 upon Rp will be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Now do it, अपने आप करिए। Yes, start doing it and get the answer. Hurry up.
यस, तो ये हो जाएगा ऐसा 1/r/3, 1/r/3, 1/r/3। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 3 जो है इट विल गो इन न्यूमरेटर, तो इट विल बी 3/r plus 3/r plus 3/r. So what do we get here? Therefore 1/rp. Here it is 1/rp will be 3, 3, 6, 3, 9. 9/r, and again don't make silly mistake, rp will be therefore rp. Try to use these signs also. Therefore 3 points हमारे, it will be equal to r/9. So therefore now effective resistance, पूरा आंसर लिखेंगे, therefore effective resistance, okay, this is equal to r/9. ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा, एंजॉयमेंट भी होगा, नॉलेज भी होगी, फायदा ही फायदा है। ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? यस, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, देखिए उसमें 4 पार्ट्स थे, तो आंसर कितना था, नीचे r/16 था, इसमें 3 है तो आंसर कितना है, 9 है। मींस जितने पार्ट्स होते हैं उनका स्क्वायर हो गया, यही आया ना रिलेशन, n पार्ट्स हैं तो n स्क्वायर। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन अ वायर of resistance R is cut into 3 equal pieces, so और उनको ज्वाइन करते हैं पैरेलल में, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, R/n स्क्वायर फार्मूला बन गया। ठीक है, ये हम एट द एंड ऑफ द सेशन जो है फार्मूला भी लिख देंगे जो हमने की है अभी। सो नोट डाउन। अब बात आती है सर रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट, हर पार्ट की रेजिस्टिविटी कितनी होगी, सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? Yes, तो Soumya is saying sir resistivity है ये it doesn't depend on the length of the wire, हमें एक ही वायर को हमने काटा है और each piece is made of the same nichrome का है, each piece is of nichrome, and resistivity जो है it depends on the material of the wire। तो material same है, nichrome है, तो resistivity भी each part की क्या होगी, same होगी। ठीक है ना, तो वो आंसर भी लिख देते हैं। So note down this। Okay, so resistivity of each part will remain same, तो same को हमने अंडरलाइन कर दिया। रीजन ऐसे लिखिए एग्जाम में, है ना, ये इट इज बेटर टू राइट हियर, हेडिंग आ जाएगा रीजन। टीचर ने जहां ही देखा ओ रीजन ऐसे दे रखा है तो फटाफट उनकी नजर जाती है और यू गेट मार्क्स, एंड इट इज इजियर फॉर इंडिविजुअल इवैल्यूएटर्स इन बोर्ड एग्जाम आल्सो, जब वो चेक करते हैं तो उनके लिए भी इजी होता है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, इसको भी अंडरलाइन करते हैं। Not on dimensions like cross sectional area of length of the wire. So resistivity of each part will remain same. आधा नंबर यहाँ मिल जाएगा आपको और आधा यहाँ, तो टोटल 1 मार्क हो जाएगा। And same way in exam marks are distributed, half plus half, it makes 1. इस तरह से ही बोर्ड एग्जाम में आपकी जो शीट्स चेक की जाती हैं। Okay? Yes, to get marks from evaluators is an art. है ना, टीचर्स हमेशा नंबर देने के लिए तैयार रहते हैं। एज पेरेंट्स आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, सेम वे टीचर्स आर ऑलवेज रेडी टू गिव यू मार्क्स, रेडी टू हेल्प यू, रेडी टू गिव यू नॉलेज। यू शुड नो हाउ टू गेट इट, यू शुड नो हाउ टू गेट ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स, नो? यस, तो ये हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो बी नाइस टू एवरीवन, बी नाइस टू योरसेल्फ आल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट। So देखिए यहां से हमने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एक फार्मूला बन गया। व्हेन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स में, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस R है और उसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स है, दिस इज इंपॉर्टेंट है, इक्वल पार्ट्स। तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, R/n होगा। ठीक है ना, ये अभी हम लोग करते आ रहे हैं। सो अब ये देखिए, ये ध्यान रखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज R/n। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, तो आई एम मार्किंग विद रेड ओनली। ठीक, एंड देन व्हेन दीस पीसेस आर ज्वाइंड इन पैरेलल, जब इनको पैरेलल में ज्वाइन कर दिया R/n पीसेस को, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस Rp विल बी इक्वल टू R/n स्क्वायर। ये अभी तक हम करते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल हो जाता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और अपना आंसर आप बोर्ड एग्जाम में भी चेक कर सकते हैं।
व्हेन ज्वाइंड इन सीरीज, अब इन्हीं पीसेस को R/N पीसेस को हमने सीरीज में ज्वाइन कर दिया, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सेम रहेगा, R रहेगा जो शुरू में था। क्यों? क्योंकि देखिए सीरीज में होता है n नंबर ऑफ पीसेस, ईच पीस इज R/N, तो n कैंसिल R ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे फार्मूले बन गए, राइट। अब इसी तरह से हम जो सर्किल के लिए बात कर रहे थे, तो सर्किल का फार्मूला भी बन जाएगा, ठीक है ना, उसको भी लिख देते हैं। एंड ट्राई टू मेक क्वेश्चंस ऑन योर ओन। जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए, ओके, आई एम डिक्टेटिंग, आप लिखिए। व्हेन ए वायर, कौन सी वायर लेते हैं? कॉपर वायर लेते हैं, है ना। कॉपर एक्सटेंसिवली यूज होता है बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट्स रेजिस्टिविटी इज वेरी लो, ठीक है ना। सो व्हेन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस wire of copper resistance R is cut into 5 pieces, यहां n की जगह 5 कर लीजिए, हम रिपीट कर रहे हैं। when a copper wire of resistance R is cut into 5 pieces, equal pieces, 5 equal pieces, लिख लिया। find resistance of each part, लिख लिया, R/5 हो जाएगा। find effective resistance, find effective resistance when these 5 pieces are connected in parallel. Find effective resistance when these 5 pieces are connected in parallel. लिख लिया। Third part, find effective resistance when these n pieces are, n की जगह कितना था हमने? 5 लिया था ना। 5 pieces are connected in series. कर लेंगे, आंसर को करिएगा और शेयर करिएगा चैट बॉक्स में। अच्छे लगे क्वेश्चन तो दूसरे स्टूडेंट से भी शेयर करिएगा, बिकॉज व्हेन वी शेयर वी लर्न मोर, वी ग्रो मोर। हर तरह से हम ग्रो करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है ना। यस, ओके, डन। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट भी लिख देते हैं। हियर दिस इज द लास्ट। When a wire of resistance R is bent in the form of a closed circle, ध्यान रखेंगे, the effective resistance at the end of any diameter, and that is always parallel होता है, तो इसलिए हमने R भी लिख दिया, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा पैरेलल का बनेगा, है ना, इसलिए हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस R भी लिख दिया है। एंड दिस इज इक्वल टू R/4। ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया, है ना। तो अगर रेजिस्टेंस देखिए, यहां पे ये फार्मूला बन गया। अगर रेजिस्टेंस 10 ओम है वायर का, तो 10/4 इक्वल टू RP कितना आ जाएगा? 2.5। अगर रेजिस्टेंस 20 है तो अपॉन 4 रेजिस्टेंस आंसर आएगा 5। अगर रेजिस्टेंस 30 है तो आंसर आएगा कितना? 7.5 ओम। तो दिस, ओके, इस तरह से वेरी इजी formula to find the answer in multiple choice questions, ठीक है। अगर ये तो हमने इवन नंबर लिए थे 10, 20, 30, अगर हम नंबर ले लें कितना 25 है, सपोज R कितना है 25 है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 25/4, 25/4, और इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? देखिए 25/4, so 25 into 25 हमने ये कर दिया, and 4 into 25, this I find easier, क्योंकि अब देखिए ये आएगा 625 and 100, है ना, एंड आंसर आता है हमारा 6.25, ये हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा। तो दिस वे वी कैन सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वी कैन प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चन। ये बात देखिए कि टीचर ने 1 घंटे में कितना कम पढ़ाया है, कितना नॉलेज गेन किया है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। So thanks to all of you. I am sure all of you must have enjoyed, and we shall continue these kind of sessions with the motivational thoughts. Okay, and I shall try to infuse energy so that you could excel in your life in all fields. Thanks to all of you. God bless you.